All right. So we were looking at theory of fluid mechanics. Fluid mechanics में basically we are looking at fluid dynamics as well as fluid statics. Statics का पार्ट हमने कल कवर कर लिया था, तो आज हमें मैकेनिक्स का मतलब डायनामिक्स का जो थोड़ा सा पार्ट बाकी है वो देखना है. So what we want to do today is, सबसे पहले हमने कल टोरिसलिस लॉ कवर किया था, हम आज चालू करने वाले हैं विस्कोसिटी. So what do you mean by viscosity? Thickness of a fluid. Thickness of fluid. Flow होने की property, something related to layers you said. So what we do is, हम assume करते हैं that the liquid is made up of layers. किसी भी दो layers में friction होगा. Adjacent layer में of course, क्योंकि friction is contact force, तो पहला layer और bottom most layer का friction नहीं बोल सकते. It is between two adjacent layer because friction is a contact force, right? So if you see, ideally bottom most layer जो होता है, bottom most layer is at rest ideally. उसके ऊपर का जो layer होगा it flows with some velocity, उसके ऊपर का layer it flows with more velocity, and जो सबसे ऊपर का है it moves with maximum velocity, correct? तो किसी भी दो लेयर में फ्रिक्शन है बेसिकली. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, आई एम नॉट शोइंग एनी वेक्टर बिकॉज दिस इज जीरो. तो V1 is 0, second layer V2 is not 0, third layer V3 is greater than V2, and so on and so forth. Good. So the frictional force between any two layers is proportional to, this frictional force between any two layers is proportional to something related to velocity, yes, but no. क्या हो रहा है? लुक हियर, मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं तो मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा है. एक्स बोलो वाई बोलो डजंट मैटर, डिस्टेंस चेंज हो रहा है. डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब देयर इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना? वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इट इज इंक्रीजिंग, मतलब देयर इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. ग्रेडियंट क्यों बोलते हो? जब भी आप डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको ग्रेडियंट बोला जाता है. जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, एक जगह से दूसरी जगह पे गए तो टेम्परेचर चेंज हो गया. So derivative with respect to position is always called as gradient. So this frictional force is proportional to velocity gradient first of all. Contact forces में areas in contact also matter. मतलब area of the surface layer, जो भी layer ले रहे हो, उस पे भी proportional होता है this particular force of friction, viscous force बोलते हैं इसको. So this F is equal to some coefficient into A into dV by dx. This eta is called as coefficient of viscosity. Okay, so this coefficient of viscosity eta is F upon A dV by dx. तो आप यहाँ से यूनिट्स डायमेंशन निकाल सकते हो. दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, क्योंकि V अपॉन x है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, राइट? करेक्ट? हाँ बोल रहे हो आप, वेरी गुड. मीटर, गुड. सो दिस इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है. डायमेंशनली बोलोगे तो m1 l1 t - 2 ऊपर से आया, नीचे l2 हुआ, ऊपर जाके -2 हुआ, मतलब m1 l - 1 t - 2, और dv by dx दिस इज l1 t - 1 by l1, कैंसल कैंसल, बराबर. तो सिर्फ t - 1. तो व्हाट आई एम सेइंग इज फोर्स m1 l1 t - 1, एरिया l2, dv by dx क्या आया? t - 1, बराबर. यस, कैंसल कैंसल. तो क्या बचेगा? m1 l - 1. तो ये आता है m1 l - 1.
और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी यही होता है। कैसे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन, है ना? Yeah, the definition. What was definition of 1 Newton? When a force produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg. So, right? Into second भी है, cancel, cancel, cancel. तो वो कर लो आप. So I'll leave it on to you to do this. But वो आपको मिलेगा definitely. बाकी आप कर लेना simplifications. You should get this particular thing. अगर नहीं मिल रहा है तो you have to see where you are going wrong. Okay, तो check कर लेना एक बार इसको. It's not that big thing. So dimensions and units, I'll leave it on to you to check. Right. So this is coefficient of viscosity. यहाँ तक पता होना चाहिए. वैसे coefficient of viscosity को और एक तरीके से भी define किया जाता है. That is shearing stress upon strain rate. अभी strain rate क्या होता है? Shearing stress तो पता ही है आपको. What is shearing stress? F by A. Strain rate is something which is V by I, where I is thickness of the slab of the liquid basically. तो ये particular formula हम लोग देखेंगे when required in numericals. तो फिलहाल जरूरत नहीं है इसकी जरूरत नहीं पड़ती है normally. Why not? You will see later. Good. I am skipping SI units because you can do it. I am skipping CGS units because you can do it. तो आप कर सकते हो. What is important? आपको ये देखना है कि how does coefficient of viscosity vary with temperature. मैंने अगर temperature बढ़ाया तो it should vary. So what is the relation between eta and temperature? And जब मैं temperature बोलता हूँ overall, it is always absolute temperature. What is absolute temperature? What do you mean by absolute? That means Kelvin में है. You are right. So when we say absolute, it means that you are measuring in Kelvin. Okay. So there is a formula which is called as Andrade formula. बहुत simple सा formula है ये. It gives you relation of viscosity, coefficient of viscosity with temperature. So this is eta is equal to A C E raised to C rho by T upon some density raised to -1/3, something like this. Yes. Where T is absolute temperature, eta is coefficient of viscosity, A and C are constants. तो A और C जो है constant है. There is no C over here. It's just this. क्योंकि constant into constant will become a constant. तो अगर गलती से कहीं पे बुक में मिसप्रिंट हुआ होगा, A into C ऐसा भी आ गया होगा तो doesn't matter because constant into constant is a new constant. So this is the formula. Rho density है liquid का, T absolute temperature है, eta coefficient of viscosity है, A and C are constants. ये पता होना चाहिए आपको. Right. Then when we want to see flow of a fluid through a cylindrical pipe, flow through a cylindrical pipe. Well, अगर आपको एक cylindrical pipe दिया है, इसमें से अगर liquid flow हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि liquid flow होने के लिए pressure difference should be there at both the ends. यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ पे प्रेशर P2 है. कोई भी फ्लूइड बिना प्रेशर डिफरेंस के फ्लो नहीं होता, तो ये पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपने टैप क्लोज करके रखा है, पानी आता है क्या बाहर? नहीं. क्यों? बिकॉज आप बोलते हो कि नॉब क्लोज है. हाँ, नॉब क्लोज है, नॉब ओपन कर दो, लेकिन प्रेशर मेंटेन करो, जितना अंदर प्रेशर का उतना मेंटेन करो. जैसे ही नॉब ओपन किया तो द फ्लूइड लिक्विड वाटर इज गेटिंग एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर प्रेशर इज लेस देन इनसाइड प्रेशर, है ना? तो fluid will start flowing. If the fluid is flowing, I want to know what is the velocity v, and considering the radius is capital R, right? अब आपने एक चीज अभी बताई because you are telling me. क्या बोला आपने viscosity के बारे में?
व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बॉटम मोस्ट लेयर का वेलोसिटी 0 है, मतलब क्या है उसका? बॉटम मोस्ट लेयर का वेलोसिटी 0 मतलब क्या? बॉटम मोस्ट लेयर कहाँ पे होगा? पाइप के कांटेक्ट में, या फिर सरफेस के कांटेक्ट में, सॉलिड के कांटेक्ट में। अब लॉजिकली अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो पाइप से भी जब फ्लूइड पास होगा तो वो कांटेक्ट में कहाँ पे है? सॉलिड पे, यहाँ पे, बराबर। मतलब जहां जहां पे एडेसिव फोर्सेस एक्ट होते हैं वहां वहां पे फ्लो स्पीड इज 0, क्योंकि वो जो लेयर है जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है वो फ्लो होगा ही नहीं, राइट? करेक्ट। वो ऊपर का जो केस था ये नीचे सॉलिड सरफेस था, ऊपर एयर था या एटमॉस्फेयर था, ऊपर से ओपन है। अब मैंने हर साइड से क्लोज कर दिया, मतलब जो लेयर पाइप को टच हो रहा है वो फ्लो नहीं होगा। फिर अब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बढ़ेगा? जैसे आप अंदर जा रहे हो, मतलब एक्सिस पे वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। करेक्ट, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फॉर्मूला याद रखना है ना हमको। मैं अगर बोल देता, मैं डायरेक्ट बोल देता फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ of fluid flowing through a pipe is given by P1 minus P2 upon 4 eta L, where L is length of pipe, R square minus small r square। कितना बार हटोगे? नहीं कर सकते। समझ लो P1 minus P2 क्यों मैंने अभी बताया। P1 is greater than P2, मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दिया कि जब आप नॉब ओपन करते हो तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर का कम है, इसलिए फ्लूइड फ्लो हुआ। जैसे टेम्परेचर हाई, देखो आपको पता है हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन, वैसे ही इसका होता है, फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सी, सॉरी टू गो लिटिल ऑफ ट्रैक, बट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप अभी 12th में हो, यू शुड ऑल्सो नो लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ योर कंट्री, बिकॉज योर कंट्री बेसिकली, हमारे कंट्री में बहुत सारे इन्वेडर्स आए, कुछ लैंड रूट से आए, कुछ सी रूट से आए। सी रूट से इंडिया ही क्यों आए, बाकी जगह नहीं मिली क्यों हमको जाने के लिए? डेफिनेटली वी आर रिच जोग्राफिकली एंड अदर थिंग्स, बट पोल के पास में देर इज हाई प्रेशर, इक्वेटर के पास में देर इज लो प्रेशर। तो पहले क्या था, पहले मोटार्स तो थे नहीं, अगर बोर्ड बनाई लगा दिया पर्दा जहां ले जाएगा, तो विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पोलर रीजन टू इक्वेटोरियल रीजन, तो दैट इज द रीजन दैट दे कुड कम हियर। तो प्रेशर डिफरेंस पता होना चाहिए, P1 माइनस P2, हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर। और मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको ये बताया कि एक्सिस पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, मतलब जो स्मॉल r है वो एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं मैं। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे A पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस मैं r बोल रहा हूँ। तो इफ आई पुट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेयर, डिस्टेंस यू आर मेजरिंग फ्रॉम एक्सिस, है ना? r क्या है? रेडियस ऑफ द ट्यूब। अगर मैं स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बोलता हूं, मतलब आई एम हियर वेयर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। तो मैंने क्या बोला? वेलोसिटी विल बी 0, डाल के देखो, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया 0 वेलोसिटी, राइट? फिर मैक्सिमम कहां पे होगा? एक्सिस पे, मतलब फॉर स्मॉल r इक्वल टू 0, राइट? तो अब याद रहेगा फॉर्मूला। हाँ, फ्लूइड फ्लो होने वाला है, मतलब वेलोसिटी है, मतलब P1 माइनस P2 होना चाहिए। दूसरा, एक्सिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, मतलब r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर होना चाहिए, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग, राइट? अपॉन 4 eta l। अभी ये याद नहीं रहा तो आप लोगों को फिर डायमेंशनली करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 4 eta l आएगा। समझा फॉर्मूला? So you should be able to recall this whenever we need it। तो बहुत सिंपल है, अभी वो बोल देते हैं Vmax is when small r is 0, मैंने भी वही बताया, Vmax is when you don't take this because r is 0। okay, next thing, okay, next thing
next topic is Stokes law. Stokes law basically gives you terminal velocity of a sphere falling through a fluid. तो बेसिकली होता क्या है, और ये तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव अ बिग ट्यूब एंड यू हैव सम विस्कस लिक्विड ऑयल डाल सकते हो, फिर आप उसमें छोटा बॉल डाल सकते हो एंड यू कैन डू दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो हमारे पास एक फ्लूइड है, और याद रखना टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ, ये सिर्फ इट इज फॉर अ बॉल थ्रू अ लिक्विड. फिर आप, क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे जो फोर्स हमने लिखा है वो तो विस्कस फोर्स हम बोल रहे हैं F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, और यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है हम बोल रहे हैं ईटा ए डी वी बाई डी एक्स. अलग अलग क्यों? क्योंकि ये फोर्स दो लेयर के बीच में है, और ये विस्कस फोर्स एक बॉल जब लिक्विड से पास होगा तो उस पे जो फोर्स होगा ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज दिस, where small r is radius of that sphere. Clear? Good. So this is force of viscosity. So what will happen? मैंने बॉल को ऐसा पकड़ के रखा है लिक्विड के सरफेस के ऊपर, अभी मैंने रिलीज कर दिया. What will happen? What do you think will happen to the ball? हाँ बोलो. नीचे जाएगा. सही तो बोल रहे हो, नीचे जाएगा. So what is the force that is taking this down? Its own weight, right? मतलब gravity basically. So weight is taking this down. Then, is there any force in the upward direction? Up thrust. There is a force up thrust. Is that the only force? No, sir. Force due to viscosity. Force due to viscosity. That is resistance due to friction basically. सही बोल रहे हो, but it is force of viscosity. तो अपथ्रस्ट जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आता है, वो भी अपथ्रस्ट है, और विस्कस फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो देयर आर टू फोर्सेस which are acting upward, or viscosity का force is given by Stokes law, right? Now if you want to find out what is terminal velocity, what do you mean by terminal velocity, by the way? फाइनल वेलोसिटी. फाइनल क्यों बोल रहा हूं? मैंने बॉल को रिलीज किया, u0 था, उसका स्पीड बढ़ते गया, एक स्टेज पे आके मान लो यहाँ पे कहीं पे आके वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, मतलब इससे आगे अब बढ़ेगा नहीं. कम होगा नहीं होगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, कम तो नहीं होगा बट बढ़ेगा भी नहीं, तो कांस्टेंट हो गया. तो व्हाई डू यू थिंक द वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट? पहले तो इंक्रीज हो रहा था, फिर अभी ये कांस्टेंट क्यों हो गया? फोर्सेस बैलेंस हो गए. वेरी गुड. सो डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स और टोटल अपवर्ड फोर्स बैलेंस हो गया. व्हाट इज डाउनवर्ड फोर्स? mg. व्हाट इज अपवर्ड फोर्स? फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट, मतलब वो बियॉन्ड सी, प्लस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, तो अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स. तो मैंने इसलिए कल बोला था कि ये अपथ्रस्ट फोर्स अच्छे से याद होना चाहिए. तो बताओ क्या था अपथ्रस्ट फोर्स? आपने लिखा था ना, आपने ही बताया था. हाँ, रो वी जी. तो इसका मतलब मुझे पहले लिखना पड़ेगा कि किसका क्या डेंसिटी. तो बॉल का डेंसिटी मैं रो बोलता हूँ, इसके डेंसिटी को मैं सिग्मा बोलता हूँ, क्योंकि बुक्स में नोटेशन ऐसे है. तो अभी क्या लिखूं? वी सिग्मा जी, बराबर, बिकॉज वी इंटू सिग्मा दिस इज मास इंटू जी इज वेट, बट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना. तो लिक्विड का डेंसिटी कितना लिया हमने? सिग्मा. तो लिक्विड का डेंसिटी है, और ये जो है ये सॉलिड का डेंसिटी है. गुड, राइट. देन अभी अपथ्रस्ट तो आप खुद ही बता रहे हो, और बाय द वे, not to get confused, this is volume, not velocity, plus 6 pi eta r v.
6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल, क्योंकि बैलेंस हो गए इसलिए टर्मिनल। वैसे ये मास m और ये मास m सेम है ना? क्यों सेम है? जितना इक्वल है, ठीक है। तो यू हैव टू बेसिकली थिंक अबाउट इट कि क्यों इक्वल है, क्या है। फिर वॉल्यूम के लिए आप डालोगे 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, और मास के लिए भी आप वॉल्यूम डेंसिटी सब्स्टिट्यूट करोगे। बट यहाँ पे मास के लिए वॉल्यूम और डेंसिटी कौन सा होगा वो देखना पड़ेगा आप लोगों को, कंफ्यूजन यही हो जाता है। mg किसकी बात कर रहे हैं? वेट। वेट में किसका मास होगा? सॉलिड का मास होगा। सॉलिड मतलब वो बॉल, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। mg, mg कहां से आया? वेट से आया। वेट किसका हो रहा था? किसकी वेट की बात हो रही है यहाँ पे? बॉल की। तो फिर डेंसिटी किसका लिखोगे? वेरी गुड, इनटू जी। और फिर ये मैं अगले स्टेप में इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, राइट। अब बेसिकली आपको करना क्या होता है, आप सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी टी। यू हैव टू सिंप्लीफाई एंड सॉल्व। तो हो गया ये सिंप्लीफाई एंड सॉल्व कैसे? 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन, रो माइनस सिग्मा इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी टी। पाई पाई गए, एक आर और एक आर जाएगा तब आर स्क्वायर बचेगा, और बाकी मैं पूरा शिफ्ट कर दूंगा, या तो फिर 2 जा एंड 3 जा, मतलब Vt will be equal to 2/9 r square g सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। बन गया टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन। यही होगा डेफिनेटली, है क्या? यस यही है सेम। कंफ्यूजन कहाँ होता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त? कंफ्यूजन यहाँ होता है, राइट। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट को समझा होगा, जैसे मैंने कल बताया था, ऑब्जेक्ट सिंक कब होता है? सिंक कब होता है? किसका डेंसिटी लेस? किसके? ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लेस, एग्जैक्टली, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट नीचे कब जाएगा लिक्विड के अंदर? जब उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा होगा, राइट। अभी मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे इसको लिक्विड का मान लिया, इसको सॉलिड का मान लिया, है ना, तो पहली बात तो वो नीचे जाएगा ही नहीं, तो कौन सी टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो रही है? इट विल बी फ्लोटिंग। तो और दूसरा चीज, सिग्मा मतलब वाटर या कोई भी फ्लूइड का डेंसिटी सॉलिड से कम ही होना चाहिए, तो मतलब ये फैक्टर पॉजिटिव ही होना चाहिए। आ रहा है ध्यान में? क्लियर? मैं वापस समझा देता हूँ, जिनको नहीं समझा है बता देता हूँ। देयर आर सम क्वेश्चन मार्क्स ऑन few phrases, so I have to tell you. How do you remember? Remember करने का भी तरीका होता है। टर्मिनल वेलोसिटी 2/9, yes। फिर क्या था यहाँ पे? याद नहीं। r square g, yes। this minus this upon this, यही था, करेक्ट। कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। अगर ऐसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना तो उसका एक सिंपल तरीका भी है, तो वो मैं नॉर्मली वो यूज करता हूं। मैं कभी भी ये सिग्मा रो नोटेशन में जाता ही नहीं हूं। आई जस्ट डू दिस सिंपल थिंग, बात खत्म। रो एस माइनस रो एल, जब मैंने रो एस माइनस रो एल लिखा है मतलब सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड का कम है, और तभी तो वो नीचे जाएगा, अदरवाइज फ्लोटिंग होगा ना।
गुड, तो याद रहेगा, तो समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, याद रहेगा कि नहीं, राइट, गुड। देन there is another equation, that is Poiseuille's law, which normally you have not heard of it because हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है नहीं. It says V is equal to pi p r raised to 4 upon eta L into 8. Right. So, what is this equation? What does it give you? So we are talking about tubes. First of all, R मतलब radius of tube, eta मतलब viscosity of liquid जो भी flow हो रहा है, L मतलब length of tube, P मतलब pressure difference, क्योंकि फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए. सिर्फ ये है कि ये v वेलोसिटी है या वॉल्यूम है या कुछ और है, ये नहीं समझ में आ रहा. इट्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड या फिर जस्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट. तो कंफर्म कर लो ना, प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स मतलब आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया इज मीटर स्क्वायर. ओके, और ये मीटर रेज टू 4 अपॉन 8. यहाँ तो अटक ही जाओगे बिकॉज एटा के डायमेंशन आपने अभी तक क्रॉस वेरीफाई नहीं किए, तो कर लेना. तो this V, it is basically volume of liquid coming out per second. मतलब ये मीटर क्यूब पर सेकेंड इसका यूनिट आएगा. मतलब L रेज टू 3 T रेज टू -1. इस पे क्वेश्चंस आते हैं और आए हैं, तो पता होना चाहिए. दिस इक्वेशन P R रेज टू 4 अपॉन 8 थीटा L और ऊपर पाई से मल्टीप्लाई किया है हमने, राइट. गुड. This is volume coming out, volume of liquid coming out per second. मैंने नल खोल दिया, टैप खोल दिया, volume is coming out per second. So this is the formula for that. Okay, good. Then जैसे आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा रेजिस्टेंसेस का, आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा कैपेसिटर का, स्प्रिंग्स का, वैसे यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स भी हो सकते हैं. और ट्यूब्स के कॉम्बिनेशन में भी आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है. पैरेलल केस इज सिंपल, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है. व्हाट डू आई मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन इज सिंपल थिंग. हमारे पास एक ट्यूब है जिसका रेडियस मतलब क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट देन द अदर ट्यूब. फिर हमारे पास एक दूसरा ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन कम है, मान लो. तो लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू दिस टू ट्यूब्स. डेफिनेटली इसको ज्वाइन प्रॉपर्ली किया होगा. क्यों ज्वाइन प्रॉपर्ली किया होगा, बिकॉज वॉल्यूम नीड टू बी कंजर्व्ड, नहीं तो फिर लीकेज हो रहा है. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लीकेजेस हियर. इसका लेंथ मान लो L1 है और मान लो इसका लेंथ L2 है, राइट. यस, so you already know what is series combination. When you have one end in common, हर एक केस में कैपेसिटर होगा, रेजिस्टेंस होगा, अगर एक एंड कॉमन है तो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. इसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस P1 है और दूसरे ट्यूब के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस P2 है. मतलब टोटल प्रेशर डिफरेंस आएगा P1 प्लस P2, क्योंकि पहले ट्यूब में से लिक्विड फ्लो हुआ मतलब प्रेशर डिफरेंस तो होना चाहिए. फिर दूसरे ट्यूब में से फ्लो हुआ मतलब उसमें भी प्रेशर डिफरेंस होना ही चाहिए. तो P1 प्लस P2. देन
total volume of the liquid will be V1 plus V2, है ना, because there is a volume V1 flowing through this, there is volume V2 flowing from this. Are you sure? Yes, you are sure, you are right. तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं इसलिए बोल रहा था कि वो V क्या है, ये V क्या है, वॉल्यूम कमिंग आउट. So that is what you need to know, that how much is the total volume coming out per second. It is volume coming out per second from tube 1 plus volume coming out from tube 2. That is total volume coming out from this series combination. Right? Good. तो अभी तो इक्वेशन बनाना कोई डिफिकल्ट टास्क है नहीं. Why? Because you know total volume V will be V1. V1 के लिए आप क्या लिखोगे, pi P1 R1 raised to 4 upon 8 eta L1 plus pi P2 R2 raised to 4 upon 8 eta L2. eta 1 eta 2 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सेम लिक्विड फ्लो होगा. ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ से पानी गया वहां पे जाके कुछ और बन गया. तो सेम लिक्विड इज फ्लोइंग. पैरेलल में हो सकता है, पैरेलल में आप बोल सकते हो कि ऊपर से हनी फ्लो हो रहा है, नीचे से पानी फ्लो हो रहा है. गुड. तो ये आ गया आपका टोटल वॉल्यूम. अब आई कैन यूज दिस इक्वेशन, या फिर आई कैन यूज, आई मीन I can combine this equation to get what is the total pressure difference. How do you find out total pressure difference, by the way? मुझे P चाहिए. My interest is in not in how much volume is coming out per unit time. My interest is to find out what is the total pressure difference. मतलब क्या, इस एंड और इस एंड के अक्रॉस कितना प्रेशर डिफरेंस है, दैट इज माय इंटरेस्ट. तो हाउ डू यू फाइंड इट आउट, कैसे करोगे? Look at this equation. What do you understand from this equation? मैं चाहिए तो इसको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज के लिए. Okay. Can I write this as, अभी क्या क्या कॉमन निकलेगा आप निकाल सकते हो. Okay. What I want is to have an equation of pressure, and it is simple equation. ये आएगा V. Then it will be 8 eta L1 upon pi R1 raised to 4 plus 8 eta L2 upon pi R2 raised to 4. ये कैसे आया मुझे वो बताओ, क्योंकि द थिंग इज अगर P1 और P2 इक्वल होते तो मैं P कॉमन निकाल लेता, है ना. तो फिर मैं बोलता पाई R1 raised to 4 upon 8 eta L1 plus pi R2 raised to 4 upon 8 eta L2. फिर तो मिल गया ना जो हमको चाहिए, मिल गया ना. नहीं, कैसे मिला? P will be V upon मतलब इसका रेसिप्रोकल मतलब पूरे का -1 होगा. गुड. तो मुझे व्हाट आई वांट यू टू नो इज, यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये इक्वेशन कहाँ से आया, हाउ डू यू गेट दिस इक्वेशन. व्हाट वाज पॉइजनस इक्वेशन? नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं, पॉइजनस इक्वेशन. देख लो एक बार अच्छे से. अब बताओ, पाई P R raised to 4 8 eta L. तो P is equal to V बराबर 8 eta L
pi r raised to 4. Correct? Good. P1, V1, L1, R1. Similarly, P2 के लिए भी आएगा. And then you can just do P1 plus P2. हो गया. तो सॉल्व तो आपको करना है, और सॉल्व आपको करना है because something you have to do on your own. तो प्रेशर के लिए ये इक्वेशन कैसे आता है, मैंने आधे से ज्यादा हिंट दे दिया. You need to work it out now. This is of course under some condition. Under some condition you get this. Okay, so what I can say from here is V is equal to P upon this whole bracket, and I will just, important है, so do not sleep. ठीक है, ये आ गया. मैंने अभी अभी आपको बताया, this is nothing but, this is nothing but, this is what, ये क्या है? अरे अभी तो बताया मैंने, ये क्या है? What is this? This is what? ऐसा चलेगा तो how will I tell you? पॉइजनस इक्वेशन वापस भूल गए आप. हाँ, प्रेशर व्हाट, व्हाट प्रेशर व्हाट. तो ठीक है, if you know it is okay, if you don't know that is fine. So I will do it in numericals, तब समझाऊंगा. that is resistance, तो वो मैं बताऊंगा in numericals. यहाँ तक तुम याद रखो. अब यहाँ तक तो याद रहेगा कि नेक्स्ट पेज पे जाए. टेल मी इफ यू कैन रिमेम्बर दिस इक्वेशन. ये याद रहेगा? गुड, ठीक है. तो सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन में याद इतना रखना कि प्रेशर डिफरेंस इज प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट प्लस प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस सेकंड. वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कमिंग आउट टोटल इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कमिंग फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड. इतना सीरीज कॉम्बिनेशन में पता होना चाहिए. देन वी गो फॉर पैरेलल. तो मैं सिर्फ बेसिक बेसिक बताता हूँ, एंड वी कैन जस्ट do other things in numericals if they appear. So in parallel combination, what do we mean by parallel combination is, हमारे पास दो ट्यूब है, so I have two tubes. Let's say एक ये ट्यूब हो गया और दूसरा ट्यूब इसके नीचे है, उसका रेडियस कम है मान लेते हैं. ट्यूब 1, ट्यूब 2, रेडियस R1, R2. Okay, right. In this case still you will have total volume coming out as per second, volume coming out from first plus second, right? But pressure के लिए आप नहीं लिख सकते. You cannot say total pressure difference is P1 plus P2, क्योंकि ऊपर का ट्यूब अलग है, उसका प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स इज P1, एंड नीचे की मतलब बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक P1 प्रेशर डिफरेंस है, और इस एंड से लेके इस एंड तक P2 प्रेशर डिफरेंस है. तो ओनली डिफरेंस दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस. यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कंजर्व्ड. यहाँ पे बोथ यू कैन कंजर्व, मतलब यू कैन राइट इट एज एडिशन ऑफ टू. इतना सफिशिएंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो इतना इंफॉर्मेशन से सॉल्व हो जाएगा. और डेफिनेटली इसके लेंथ को मैं L1 बोल दूंगा, इसके लेंथ को मैं L2 बोल दूंगा. याद रहेगा यहाँ तक? तो सो फार व्हाट वी हैव डन, विस्कोसिटी इंट्रोड्यूस कर दिया. Viscosity is friction between two layers. It depends on area and velocity gradient. Then how eta is changing with temperature is given by Andread formula. Then flow through cylindrical pipe, मतलब along the axis the velocity of the flow will be maximum, and at the circumference बोलने से at the point of contact, या तो फिर the topmost layer velocity is zero because it is not moving at all. Stokes law gives you viscous force acting on a sphere when it is flowing through a liquid.
स्टोक्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये जो मैंने लिखा है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, और यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ में एक सॉलिड एक लिक्विड है, वहां पे लिक्विड लिक्विड सरफेस के बीच का फ्रिक्शन है, राइट। टर्मिनोलॉजी कैसे निकाली मैंने आपको बताया। फॉर्मूला याद रखना इजी है, 2/9 r square g डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन ईटा। ओके गुड। Then Poiseuille's law gives you how much is the volume of liquid coming out per unit time. पर सेकेंड कितना वॉल्यूम बाहर आया, 10 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, कितना आया, राइट, मीटर क्यूब ना वॉल्यूम, राइट। Then series combination and then parallel combination. So this is end of theory part of fluid statics and dynamics. So question number 1, and as I told you, you will be getting 2 minutes to solve this question, and you have to tell me what approach did you use. So your time starts now. So ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। 2 syringes of different cross section without needle filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube. Diameters of the smaller and the larger pistons are 1 and 3 centimeter respectively. If the force of 10 Newton is applied to the smaller piston, then the force exerted on the larger piston is Pascal's law. Larger piston, smaller piston, इसका आपको पिस्टन का डायमीटर दिया हुआ है, लेट अस से d2, मतलब आपको रेडियस मिल जाएगा, और इसका बिग का भी आपको दिया हुआ है d1, मतलब आपको रेडियस मिल जाएगा। फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हो, स्मॉलर पिस्टन से, मतलब ठीक है मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर P1 इक्वल टू P2, मतलब फोर्स F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, राइट। ओके, तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है F1, क्योंकि मैंने सिर्फ नोटेशन उल्टे लिखे। अगर आपको पसंद नहीं है, यू कैन चेंज द नोटेशन, यू कैन एक्चुअली रोटेट द डायग्राम इफ यू वांट, इट इज पॉसिबल। तो ऐसा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, डजंट मैटर सिर्फ याद रखना, या फिर इससे भी इजी चीज है दैट आई नॉर्मली वांट यू टू डू इज सिंपल है, प्रेशर एट स्मॉलर इक्वल टू प्रेशर एट बिगर, कभी गड़बड़ नहीं होगा इससे। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। क्या फाइंड करना है, एफ बी फाइंड करना है, तो एफ बी इज फ्रॉम हियर ए बी बाई ए एस इंटू एफ एस, पाई आर स्क्वेयर, तो आर बी अपॉन आर एस स्क्वेयर इंटू एफ एस। देखो डायामीटर का रेशियो ले लो, डायामीटर ऑफ बिग अपॉन डायामीटर ऑफ स्मॉल, डायामीटर और रेडियस का रेशियो कभी भी सेम होता है, और उसमें यूनिट्स का कोई हमको ऐसा में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका 3, मतलब ये आ गया आपका 3 स्क्वायर 9 इंटू एफ एस इज 10, मतलब 90 न्यूटन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे क्या अप्लाई किया, पास्कल्स लॉ। So this is important for you to know that we are using Pascal's law here. Next question. Your time starts now. So this question is simple. If you take it to real life, कभी भी दरवाजा खुलना है, तो दरवाजा खुलना है तो एक साइड का प्रेशर दूसरे साइड से ज्यादा होगा तो ही वो दरवाजा ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमारे पास एक स्क्वायर बेस का टैंक था जिसको हमने 2 कंपार्टमेंट में स्प्लिट कर दिया, उसके बेस पे एक डोर था, ओके, और एक साइड पे वाटर है, दूसरे साइड पे एक
लिक्विड है जिसका रिलेटिव डेंसिटी 1.5 है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे वाटर है, राइट? तो आई विल फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द प्रेशर ऑन exerted by the liquid on that door. पहले ये देखना पड़ेगा. Yeah. So you have to see what is the pressure on both sides at the bottom. कहाँ तक भरा है हमने? 4 मीटर तक दोनों को भरा है, 4 मीटर तक. तो H rho G. H is for liquid का relative density 1.5, मतलब 1.5 times of water. If you remember, relative density क्या था? Density of liquid with respect to water. 1.5 है ना, into 10⁻³ करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 is with respect to water. Basically what I'm saying is density of liquid by water, है ना. This is relative density. तो density of liquid क्या होगा? Relative density into density of water. तो 1.5 into 10⁻³ आएगा. ये 1.5 है और ये 10⁻³ है, करेक्ट? क्लियर, राइट? इंटू जी की वैल्यू कितनी? 10. कितना आया ये? 1.5 into 4 is 6 into 10⁻⁴. तो कितना प्रेशर है? 6 into 10⁻⁴ पास्कल, करेक्ट? तो लिक्विड, जो भी लिक्विड डाला है वहां पे, राइट, उस लिक्विड का प्रेशर डोर पे, क्योंकि डोर बॉटम पे था इसलिए 4 मीटर लिया. अगर बोला था कि 2 मीटर डेप्थ पे है तो 4 की जगह पे 2 लिखता. व्हाट इज प्रेशर फ्रॉम द वाटर साइड? इट इज H rho water into G. H is 4, rho water is 10⁻³ G is 10, मतलब 4 into 10⁻⁴ पास्कल, करेक्ट? एक साइड पे प्रेशर ज्यादा है, दूसरी साइड पे कम है, तो डोर विल ओपन फ्रॉम लिक्विड टू द वाटर साइड. क्लियर? उन्होंने क्या बोला है? वी डोंट वांट द डोर टू ओपन. मतलब जितना प्रेशर डिफरेंस है, कितना प्रेशर डिफरेंस है? PL माइनस P वाटर, उतना का उतना दूसरे साइड से लगाना पड़ेगा अगर आपको डोर को क्लोज करना है तो कितना है ये प्रेशर डिफरेंस? 6 minus 4 into 10⁻⁴, मतलब कितना? 2 into 10⁻⁴ पास्कल. बट प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, राइट? तो फोर्स कितना हो गया? एरिया इंटू 2 into 10⁻⁴. एरिया कितना दिया है उन्होंने? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. तो एरिया इंटू दिस वैल्यू 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 into 10⁻⁻⁴ इंटू 2 into 10⁻+4, कैंसल 40 न्यूटन का फोर्स वाटर के साइड से लगाना पड़ेगा टू कीप द डोर क्लोज्ड, करेक्ट? तो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक. दरवाजा कब खुलता है? जब प्रेशर एक साइड पे ज्यादा हो तब, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. आप तो पूरा ही लेंगे ना, पूरा ही लेंगे ना. दरवाजे का एरिया लिया ना हमने, डोर का एरिया लेंगे ना. हम बेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर, मतलब तुम बेस का एरिया नहीं लोगे ना. ये एरिया ऑफ द बेस 2 मीटर स्क्वायर. जो टैंक है उसके बॉटम का एरिया लेके क्या करूंगा मैं? दरवाजे को बंद रखना है तो दरवाजे का एरिया लेंगे ना हम लोग, राइट? सो डिड आई मेक इट क्लियर? ओके, ओके. एनी डाउट्स? तो मैं इसको ओरली कर सकते हैं. कैसे? डेल्टा पी में H और G तो सेम है, तो 4 into 10 40, है ना. फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, 1.5 into 10⁻³ माइनस 10⁻³, 0.5 into 10⁻³ 5 into 10⁻³ और बाहर कितना था? बाहर कितना था? 40, मतलब कितना हो गया? 2 into 10⁻⁴. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जो भी मैंने अभी बोला इतना कुछ ओरली कैसे करते हैं? ओरली सिर्फ डेल्टा पी आपको देखना होता है F/A. F इज इक्वल टू डेल्टा पी ए. डेल्टा पी डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा था तो डेफिनेटली
h रो बाहर निकाल के लिक्विड का डेंसिटी वैसे वाटर का डेंसिटी माइनस करेंगे इनटू एरिया लिखेंगे। ओरली समझ गया था कि 4 फैक्टर आएगा, क्यों? क्योंकि ये 4 इंटू 10 मतलब ये 40 तो ऑलरेडी है, और ये था मेरे पास 0.1.5 माइनस 1 इंटू 10 पावर 3। एरिया जो है एरिया ये 20 इंटू 10 पावर माइनस 4 था, मतलब समझ में आ गया था कि ये 0.5 इंटू 40 20 इंटू 20 400, मतलब 4 तो आना ही चाहिए वहां पे। ओके, तो 4 तो आना ही चाहिए बिकॉज दिस इज हाफ इंटू 40 इज 20 20 इंटू 20 इज 400, तो ये 40 न्यूटन आएगा। और 4 स्टार्टिंग में पहला नंबर 4 एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब करने से बेटर आप ऐसा भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो कॉन्सेप्ट्स, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Your time starts now. So, according to the question, a liquid flows through a horizontal tube as shown in figure. The velocities of the liquid in the two sections which have areas of cross section A1 and A2 are V1 and V2 respectively. The difference in the level of the liquid in the two vertical tubes, ये यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे लेवल डिफरेंस है, तो लेवल डिफरेंस कहाँ पे नहीं है? लेवल डिफरेंस कहाँ पे नहीं है? तो लेवल डिफरेंस आपका यहाँ पे नहीं है, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बोथ आर एट सेम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहली चीज ये। दूसरा, इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ये लिक्विड कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल है। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग लिक्विड को इनकंप्रेसिबल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है आपको A1 V1 इक्वल टू A2 V2, मतलब आपको यहां से सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा V1 बाय V2 इज इक्वल टू A2 बाय A1। फिर आप यूज करोगे बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या था? प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस, मैं एच यहाँ पे एच कैपिटल यूज कर लेता हूं बिकॉज आई से दैट दिस इज कैपिटल एच विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी अगेन एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नॉर्मली जब हाइट ग्राउंड से सेम है तो मैं ये टर्म लिखता ही नहीं हूं क्योंकि कैंसिल हो जाता है। देन P1 माइनस P2, क्योंकि प्रेशर एट 1 विल बी ग्रेटर देन 2, अदरवाइज लिक्विड लेफ्ट से राइट जाएगा ही नहीं, उल्टे डायरेक्शन में आएगा, करेक्ट? इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। लेकिन P1 माइनस P2 आप वेंचुरी मीटर से मेजर करते हो, राइट? एंड दैट इज नथिंग बट प्रेशर डिफरेंस इज नथिंग बट अगेन रो जी एच, राइट? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो कैंसल, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ यूज किया? कहीं नहीं। क्यों लिखा? सिर्फ टू टेल यू दैट दिस इज अ लिक्विड विच इज इनकंप्रेसिबल। तो क्या था? बर्नौलीज इक्वेशन, एंड यू शुड नो प्रेशर डिफरेंस between two vertical tubes is nothing but difference of height into the liquid inside that tube into G। तो आ गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। क्या था? कुछ नहीं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और 3 हो गया सॉल्व। तो टेक अवे पॉइंट्स, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ऑलरेडी सॉल्व होता है? हाइट of both the tubes with respect to ground is same, मतलब potential energy per unit volume term will cancel out। P1 plus half rho V1 square equal to P2 plus half rho V2 square।
P1 minus P2 is half rho V2 square minus V1 square, but P1 minus P2 can be found out from here, that is rho GH. Rho GH equal to half rho V2 square minus V1 square. Rho cancel, 2 को शिफ्ट कर दिया, 2GH is equal to V2 square minus V1 square. ओरल क्वेश्चन था, and you need to be prepared for this, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा मैं बोलूंगा no pen no paper oral. This is going to happen very soon. No pen paper allowed while solving questions. Next. And your time starts now. This question is a simple question which can be solved with the help of combination of two concepts, horizontal projectile motion and Torricelli's law. Why? Because it says a water barrel stand on a table of height h. So you have a table whose height with respect to ground is h. There is a barrel of water. So you have a barrel of water यहाँ पे, right? If a small hole is punctured in the side of the barrel at its base, यहाँ पे पंचर किया, it is found that the stream of water strikes the ground at a horizontal distance of r. Right? What is the depth of water in the barrel? You're supposed to find out this depth d. So from Torricelli's law, you know the speed of efflux will be is equal to under root of 2gd. h को d बोला है, कल ही बताया था मैंने. Okay, that is going to be the initial velocity of the projectile motion, right? क्योंकि ये जो velocity यहाँ पे आएगा v, that is going to be right initial velocity. और आपको पता है from height to ground मतलब horizontal projectile motion में there is no y component of initial velocity. Range here was just given by v into time of flight. Time of flight is nothing but under root of, yes, so r equal to vt, v is under root of 2gt, t is under root of 2h by g. ये h होना चाहिए यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट में h होना चाहिए, correct? That is r here. So if I square, I get r square equal to 2gd और 2h by g तो गया, तो r square equal to 4dh, तो d is equal to r square by 4h. Option number C. तो रेंज आप प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट से ले रहे हो और इनिशियल वेलोसिटी आप टॉरिसेलिस लॉ से ले रहे हो. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर सी. एनी डाउट्स हियर? जिनका प्रोजेक्टाइल मोशन बाकी है रिकॉर्डेड लेक्चर देखना शुरू करो. R इक्वल टू VT कैसे आया? S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर. प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता ही नहीं है. There is only y component of acceleration. So S equal to VT. S is R, V is U, T is T. But T is time of flight here. क्यों time of flight? क्योंकि motion complete हो गया. और time of descent to be frank, not time of ascent here. क्योंकि horizontal projectile motion में सिर्फ descent ही हो रहा है ना. The body is not going up, it is just coming down. So this is how you do it. Clear? पक्का? और वैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाते हो वो इसी से तो आता है. आप क्या करते हो? S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर x कंपोनेंट पे और y कंपोनेंट पे अप्लाई करते हो. पहले x कंपोनेंट पे अप्लाई करते हो, फिर बोलते हो x इज इक्वल टू UXT, फिर बोलते हो t मिल गया x बाई UX, फिर आप बोलते हो y इक्वल टू UYT प्लस 1/2 AYT स्क्वायर. पर मुझे तो y और x का रिलेशन चाहिए था तो मैं t के लिए सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, ये तो मिल गया. और इट टर्न्स आउट टू बी इक्वेशन ऑफ पैराबोला. याद है क्या? y इक्वल टू
tan theta into x minus u square by 2g cos square something something, या फिर tan theta into bracket 1 minus x by r, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो याद रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so this question you can solve with the help of the formula that we saw yesterday, rho s upon rho liquid displaced. A block of wood floats in water with 4/5 of its volume submerged. So this is 4 by 5. V immersed by V is 4 by 5. कैसे? 4/5 of volume upon volume, मतलब 4 by 5 is equal to density of wood upon density of liquid। कौन सा था पहले केस में? density of water था, इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2, if the same block just floats का मतलब आपको पता होना चाहिए, that is VIM equal to V, है ना। तो ये आता है VIM upon V। अगर आ गया इसका मतलब ये इक्वेशन यूज किया तो 1 is equal to density of wood upon density of liquid displaced, इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या फाइंड करना है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड करना है आपको। तो क्या करोगे? डेंसिटी ऑफ वुड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे। ये तो वैसे भी 4/5 था, तो 4/5 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वुड मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, 4/5 ऑफ वाटर। 4/5 ऑफ वाटर इज 1000 का 80%। तो ये आ गया आपका 4 by 5 rho W, that is 4 by 5 into 1000, that is 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जस्ट फ्लोट इसलिए मैंने 3 केसेस लिए थे, that you should know what is the meaning of just float. So what we have done, we have applied this formula in 2 cases and then we have used these 2 equations and finally we have 800, right? क्लियर। अब शॉर्टकट क्या था? शॉर्टकट ये था कि जैसे ही जस्ट फ्लोट दिमाग में आए, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब मैं सीधा यहीं पे लिख देता, मतलब 4/5 ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, खत्म। 4/5 इज 0.8, 0.8 into 1000 इज 800। तो जस्ट फ्लोट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, करेक्ट? समझा ट्रिक या फिर बताऊं वापस से? क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन and your time starts now. If I give you 1 hour to solve this, ये solve नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि as I told you, क्या पूछा है? Coefficient of viscosity। यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने इसलिए बोला था ये पता होना चाहिए। What is this? F upon A dV by dx। F इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन में है तो न्यूटन ही रखो, बेस्ट थिंग। न्यूटन अपॉन एरिया इज मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज मीटर पर सेकेंड पर मीटर, बराबर? करेक्ट करेक्ट, है ना। एक एक कैंसिल हो गया, राइट। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। चारों ऑप्शन में एक भी ऑप्शन में यूनिट्स करेक्ट नहीं है, मतलब उन्होंने पूछने की कोशिश की थी व्हाट इज स्ट्रेस, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस, है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस, तो क्वेश्चन ही गलत है। तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन सिंस इट इज इनकम्प्लीट या फिर रॉन्गली आस्क्ड। सो दिस इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन। मैंने इसीलिए बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A metallic sphere of mass m falls through glycerin with a terminal velocity v. If we drop a ball of mass atom of the same metal into a column of glycerin, the terminal velocity of the ball will be. So you need to know terminal velocity Vt is 2 by 9 r square g solid minus liquid upon eta. Did we change solid? No. ये कांस्टेंट. डिड वी चेंज लिक्विड? नो. ये भी कांस्टेंट. मतलब ये भी कांस्टेंट, मतलब ये तो कांस्टेंट ही था, मतलब ये भी कांस्टेंट. मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट यहाँ पे मास की बात हुई है. हाउ डू यू फाइंड आउट मास? मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम इज 4 by 3 pi r क्यूब इनटू डेंसिटी. राइट, करेक्ट. इसका मतलब ये होता है यहाँ पे यू वांट टू रिलेट रेडियस स्क्वायर विथ मास, क्योंकि हमको लगने वाला है रेडियस का स्क्वायर और रिलेशन दिया है मास का. मतलब इफ आई राइट डाउन v2 by v1 आई विल बी राइटिंग डाउन r2 by r1 स्क्वायर्ड. बट r2 by r1 ये आपको मिलेगा. अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी नहीं समझ में आती है, doesn't matter. If you are not comfortable using proportionalities, कोई बात नहीं. But what I can do is here also you can see mass is proportional to, क्योंकि ये और ये constant है, because दोनों केस में मेटालिक स्पीयर है, सेम मेटल का स्पीयर है. तो आप बोल सकते हो ना m2 by m1 is proportional to r2 by r1 का क्यूब. मतलब r2 by r1 is proportional to m2 by m1 raised to 1 by 3. तो इसका स्क्वायर विल बी 2 by 3. मतलब दिस विल बी m2 by m1 raised to 2 by 3. What is m2 by m1? m2 is 8m and this is m1 is 8 है ना. m2 by m1 8 है. What is cube root of 8? 2. What is 2 square? 4. तो v2 by v1 is 4. मतलब v2 is 4 times of v1. तो हमको क्या पता था, टर्मिनल वेलोसिटी जैसे ही आपने बोला आर स्क्वायर, वहीं पे क्वेश्चन हो गया था खत्म, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करता है बॉल के रेडियस के स्क्वायर पे. बट हमने यहाँ पे मास की बात की है, सेम मेटल है और लिक्विड भी सेम है, क्योंकि बोला ही है इनटू कॉलम ऑफ ग्लिसरीन अगेन. तो दोनों केस में अगर लिक्विड सेम है, मेटल का मटेरियल सेम है, मतलब रो एस रो एल कांस्टेंट है, एटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, 2 by n कांस्टेंट है, तो वीटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है. बट मास चेंज हुआ तो मास और रेडियस रिलेशन देख लिया मैंने. मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब फ्रॉम हियर, एंड देन आई हैव मेड अ रिलेशन of r square. तो r square is proportional to m raised to 2 by 3. और बस फिर ये हो गया आपका सॉल्यूशन. दिस इज हाउ you solve such questions. Any doubt here? Okay. Intentionally, क्योंकि क्या होता है ना, मास 8 टाइम्स वो स्टूडेंट से नहीं, रेडियस 8 टाइम हो गया, फिर करो, फिर रेडियस 8 टाइम हो गया तो गए. देन यू डू अदर थिंग्स ओवर देयर. ओके, क्योंकि फिर वहां पे आप सिर्फ 8 स्क्वायर और ये सब सॉल्व करते बैठोगे. The flow rate of water from a tap of diameter 1.25 centimeter is 3 liter per minute. 3 liter per minute. Capital V मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. कौन सा? Poisson's law. The coefficient of viscosity is 10 per minus 3. The nature of flow is. I will be directly solving this question because I have not told you what is the relation of V with Reynolds number. क्योंकि आपको पता है Reynolds number will tell you if it is laminar, if R is less than 2000, if between 2000 and 3000 unsteady because it is changing, and turbulent if it is greater than 3000. So you should know there is a formula. Reynolds number is equal to 4 rho volume per unit time. बहुत सारे जगह पे it is denoted by Q, क्योंकि फिर वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम और वॉल्यूम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए Q से डिनोट करते हैं. दिस Q इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वही पॉइसनस लॉ का V.
अपॉन क्या, तो अपॉन if I remember correctly, yes, pi d eta, diameter eta। ये इक्वेशन डायरेक्टली पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए 3 लीटर पर मिनट इज हाउ मच मीटर क्यूब पर सेकेंड। मैंने बताया भी था आपको एक बार, लीटर इन मीटर क्यूब इज 10 पावर -3 एंड लीटर इन सेंटीमीटर क्यूब इज 10 पावर +3 अपॉन मिनट का सेकेंड में 60। तो ये आ गई क्यू की वैल्यू। डेंसिटी वाटर है तो पता ही है 1000, तो 4 इंटू 1000 इंटू 3 इंटू 10 पावर -3, इसके नीचे 60 था तो 60 लिख देते हैं हम लोग पहले। क्यू हो गया, रो हो गया, पाई और डायमीटर 1.25 है 10 पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, करेक्ट। देन यू हैव टू सॉल्व दिस अगेन, इसको सॉल्व करो। 4 इंटू 3 इज 12, ये 12 वन जा, ये नीचे 5 जा, ये और ये तो कैंसल ही हो गया है ना। तो 5 इंटू 1.25, 5 इंटू 125 इज 625। तो अगर आपको याद होगा ये 1/पाई, ये आपने बताया 6.25 है ना, यू टोल्ड मी 6.25 करेक्ट, इंटू 10 पावर -2। कैन आई राइट इट like 0.0625? क्यों? क्योंकि I told you this is 0.5, this is 0.25, this is 116, 0.125, this is 0.0625। तो 1/0.0625 is 16 और 1/पाई, what is पाई? 3.14। तो 1/3.14 टर्न्स आउट टू बी 0.31, सिर्फ एक पॉइंट हटा दो बस, तो 0.318। 16 इंटू 3 कितना होता है, कितना होता है? There's something wrong here, yes, but just to tell you calculations, something we have to solve, something we have to solve, okay? कुछ चेंज करना पड़ेगा, but more or less we are done, more or less। सिर्फ मैंने क्या नहीं लिखा, वो मैंने नहीं लिखा 10 पावर -3, मतलब मैंने एटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की है, तो एटा के लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, इज 10 पावर -3, ऊपर जाएगा तो 10 पावर +3, 10 पावर +3, इजी है। 16 3 48, रफली ये 0.3 है ना, तो रफली 0.5 है ये, रफली into 10 पावर 3, मतलब रफली 5000 which is greater than 3000, मतलब कैलकुलेशन सिंपल करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यू विल स्पेंड टाइम कैलकुलेटिंग, तो ऐसे क्वेश्चंस आपका टाइम पास कराने के लिए आते हैं। फॉर्मूला याद है, लेकिन क्या करूँ फिर, अब कैलकुलेशन टाइम पास करो। 4 इंटू 3 12, 12 5 60 गया, 10 पावर +3 -3 गया, राइट। 5 इंटू 1.25 6.25, और ये दो पावर एडजस्टमेंट के लिए थे, 10 पावर -2 मतलब 0.0625, मतलब 1/16 आता है, तो 16 ऊपर गया, 16/पाई, 16/पाई भी बोल देते हैं, 16/पाई इज रफली 5, 5 इंटू 10 पावर 3, 5000 खत्म। तो दिस इज हाउ यू डू इट। अच्छा ये 0.5 नहीं होता है, बाय द वे, सॉरी फॉर दिस, दिस इज जस्ट 5 एनीवेज, तो ठीक है, ये 5 है, ओके। तो 5000 इज ग्रेटर देन 3000, मतलब टर्बुलेंट है। डाउट्स? तो वो 0.5 लिखा तो डेंजरस है ना ये, बिकॉज इट बिकम्स 500, फिर तो आप बोलोगे लेमिनार फ्लो है ये, ओके। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। नेक्स्ट, an ideal fluid flows through a pipe of surface cross section made up of two sections with diameter 2.5 and 3.75. The ratio of velocity in the two pipe is, here you just have to use a1 v1 equal to a2 v2
आपको रेशियो वेलोसिटी पूछा है, v1 by v2 is a2 by a1 एंड डायमीटर दिया हुआ है तो आपको पता है एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, तो d2 by d1 का स्क्वायर है ना, d2 इज 3.75 और 2.5 स्क्वायर, 3 जा 2 जा 1.25 into 2 is 2.5, 1.25 into 3 is 3.75, 9 by 4 खत्म. Option number A, right? So this is how you can solve such questions. All right, so it's around 7:45 now. So in the next lecture, I'm gonna try to complete 28 questions. That means 14 questions in 1 hour probably. So we'll see tomorrow at the same time.